Hi guys, so this video is about cover letter, how to write effective cover letter, or this can be also helpful in framing the answer of why do you want to join this organization or why do you want to work for this role, like why this role is suitable for you. So these all the answers I'm gonna cover in this video. So first of all, I would just mention that this may not be the best strategy for you because I am just talking about my experiences and how did I frame it. So this video is gonna help you in creating the best strategy for according to you. I'm just gonna help you. I'm not saying that this is the best way, but this can be the better way for you. So simply starting with the first thing, if you know the name of hiring manager or if you know the name of that person who is hiring for that role, so you should start with the name like hi Mr. Ajay or whatever it is. So you should start with that name, addressing like his or her name. You should like first greet them, देन स्टार्ट विद द कंटेंट. एंड वन मोर थिंग, बहुत ही ज़्यादा हैवी वोकैब नहीं यूज़ करनी, ऐसा ना लगे कि सारा चैट जीपीटी से लिखवा लिया है और सब मतलब गूगल किया हुआ है, ऐसा ना करना. मेक इट वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी रियलिस्टिक. इतना भी सिंपल नहीं करना है कि ऐसा लगे पूरी ग्रामर की ऐसी की तैसी कर दी, बट या इट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी रेलेवेंट टू योर वर्क रोल. बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग दिस थिंग, द कवर लेटर और द आंसर ऑफ द वाई दिस रोल और वाई दिस कंपनी, you should be very clear with the role. What role are you applying? What is the KPI for them? What is the job role? What is the job description? What are you gonna do in that job? You can also connect with the some of क्या बोलते हैं जो employees हैं same role पर. You can connect with them and you can understand how they are working. और job description, you should be very clear with the job description thing and the company you are applying for. Let's say you are applying for the Group M, so you should be having all the knowledge what Group M is exactly doing, how their clients are working, what are their clients, and like what role I'm gonna perform, and in that role what I'm supposed to do. And then you have to relate that thing like the JD thing, job description thing, in the cover letter or in the answer of that why this role or why this company. तो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें बहुत क्लियर कर लेना. वो कैब बहुत हैवी नहीं यूज़ करना, चैट जीपीटी वगैरह जैसा मत लगे, इतना ज़्यादा मतलब मत कर देना. दो चैट जीपीटी इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा एकदम फ्रेम करके ऐसा कर दो, बट ऐसा रियलिस्टिक लगना चाहिए कि या इट इज़ रिलेटेड टू यू, यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस. हाँ, तो एड्रेसिंग द हायरिंग मैनेजर, अगर नेम पता है तो उसको एड्रेस करो. उसके बाद यू शुड बी लाइक जंप इन टू द कॉन्टेंट थिंग. तो यू शुड स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन पहले दो. उसके बाद इंट्रोडक्शन भी इस तरीके से दो, इट सीम्स लाइक यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब. Like if I have to represent myself, so I will like do this thing as someone. When I was like writing the cover letter or while applying for the various companies, so how did I start it? It is like as someone who has attended various boot camps, where did many courses on digital marketing and did this kind of internship. Like you should start the sentence with the like you should relate it with the job description and the role you are gonna perform. तो ऐसे में like interest पता चले आपको, पहली लाइन पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ इस बंदे का इंटेंट जो है मैच करता है जॉब डिस्क्रिप्शन से. तो आई वोंट सजेस्ट कि ऐसा स्टार्ट करो, माय नेम इज चक्रेश तिवारी एंड आई लिव इन उन्नाव और वट एवर इट इज़. तो ऐसा आई वोंट सजेस्ट, इवन इफ लाइक अगर आपको लग रहा हो कि दैट कुड बी बेटर वे, यू कैन गो फॉर इट बाय मेकिंग इट मोर लाइक इन अ मोर इम्पैक्टफुल वे. बट आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन ऐसा दो कि आपके स्किल्स उसमें रिप्रेजेंट होनी चाहिए और आपका एक रिलेशन बनना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन से और आपके इंट्रोडक्शन से. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद लाइक वट एवर यू डिड, वट एवर यू आर करंटली डूइंग, लाइक इफ यू आर परसुइंग मार्केटिंग लॉन्च पैड प्रोग्राम ऑफ क्रॉफचाला, यू कैन जस्ट मेंशन दैट थिंग. उसके बाद फोकस करना है लर्निंग्स पर, स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर, एंड हाउ इट इज़ गोना हेल्पफुल फॉर यू इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी सारी स्किल्स की बात करोगे कि लाइक आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग. लाइक इफ यू हैव डन एनी इंटर्नशिप, यू कैन टॉक अबाउट दैट थिंग. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू टॉक अबाउट रेलेवेंट थिंग फर्स्ट, एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू talk about, then jump into the unnecessary thing. Like if you have done 2 internship, first is digital marketing internship, second is HR internship or sales internship, and the role is for the digital marketing thing, so you should mention that digital marketing internship first. You should mention that thing. Also you should mention what did you learn from that internship, and after that you can mention कि how is it gonna helpful for the organization, आप किस तरह से contribute करने वाले हो. तो पूरे कवर लेटर में यू हैव टू टॉक अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन में आप किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हो, किस तरह से आप इस जॉब को परफॉर्म करने वाले हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है और इसको किस तरह से बेटर कर सकते हो. ये चीज़ें आपको बात करनी है पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन और कवर लेटर और इन आंसर में कि वाई दिस रोल इज सुटेबल फॉर यू. तो इफ द क्वेश्चन इज वाई दिस रोल इज सुटेबल फॉर यू और वाई दिस कंपनी, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी. तो अगर वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी है क्वेश्चन, तो यू शुड लाइक study deeply about the company, what this company is actually doing, how their clients are performing. Then you should show the interest कि आपको क्यों ज्वाइन करना है ये कंपनी. लाइक इफ इट इज़ ग्रुप एम, तो आपको ग्रुप एम के सारे क्लाइंट्स पता होने चाहिए, ग्रुप एम क्या वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए और फिर उसके बारे में बताना चाहिए. देन यू शुड शो द इंटरेस्ट कि या आई एम लिटरली इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग. तो रिक्रूटर को एक बार पढ़ के लगेगा कि हाँ दिस बंदा इज लिटरली इंटरेस्टेड, इसने कुछ स्टडी कर रखी है. सेम फॉर द जॉब रोल, अगर वाई दिस जॉब रोल इज सुटेबल फॉर यू, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और अपने एक्सपीरियंस को उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेट करना है और उसी को एक कवर लेटर में फ्रेम करना है. दैट्स इट.
कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं बतानी है कि ऐसा लगे कि मतलब अननेसेसरी इन द सेंस अगर वो रिलेवेंट हो, आपको लग रहा है इम्पैक्टफुल है, मतलब इफ़ यू आर लाइक फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आपको डांसिंग बहुत पसंद है, तो यू कैन मेंशन इट, नो वरीज, लाइक यू कैन मेंशन कि डांसिंग से हम इसमें लाइक आई गेट मोटिवेटेड बाय डूइंग डांसिंग एंड वट एवर इट इज़. But I would suggest in the cover letter at least just mention the thing which is more like related to the job description, company and the job role, and how you are gonna perform well, like how these learnings, like you firstly you will talk about yourself, introduce yourself, whatever you are doing. Second thing, what you I'm just framing the structure. First thing, addressing the hiring manager. If you know the name, you can mention it, otherwise just hi or whatever it is. Greeting is important. Second thing is introduce yourself with showing the interest of joining that company, like your introduction should represent your skills and your desire to join that company. Okay, the second thing. Third thing is your experience and your learnings from that experience. You should talk about I did this digital marketing internship or whatever you have done. Yeah, I did this course from Craftchala and learned this thing, presentation skills and whatever skills you have learned. Like if you did marketing launchpad program from the Craftchala, you can mention I did this thing, the major projects was there about this thing, and I have learned how to represent the projects or whatever it is, presentation skills, Excel skills, and the digital marketing skills. I have like done specialization in paid media, so I am good at creating the media plan or whatever it is. You can just mention that thing. After explaining this learning and the experience thing, then you should come into how these things are gonna helpful for you in the future for that company, or like for you and for that company also, कि how are you gonna perform well by including the your overall experience. तो सारे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आपको कंक्लूड करके आपको बताना है कि हाउ दिस एक्सपीरियंसेस आर गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस जॉब रोल. तो बस व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द जॉब रोल एंड द कंपनी, कि आप कैसे लाइक आपका इंटरेस्ट और जॉब रोल के बीच में क्या कनेक्शन है. तो बस रिक्रूटर को एक बार पढ़ के ये समझ आना चाहिए कि या दिस बंदा इज लिटरली इंटरेस्टेड एंड वी शुड कंसीडर हिज रेज्यूमे. तो या दैट वाज ऑल अबाउट द कवर लेटर और why the answer of why should you join the company or whatever it is. So this is the things I just had to share. So before winding up this video, I just want to share कि I have created a telegram channel also. Like I was going through some of my videos और उसमें कुछ comments थे, तो मैं comments का reply नहीं कर पाया. तो I thought कि एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं जिसमें सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, यू कैन ज्वाइन इट और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो. तो आइदर यू आर गोना ज्वाइन एनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और यू आर डूइंग एनी जॉब इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और लाइक वट एवर यू आर, यू कैन जस्ट ज्वाइन द चैनल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स. इवन लाइक फॉर द रेफरल्स ऑल्सो, लाइक जो लोग कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर जॉब्स के लिए देख रहे हैं, तो एक दूसरे की लाइक हेल्प करने के लिए यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. सो बिकॉज आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू माई चैनल एंड देख रहा था कि 2-4 लोगों के सेम डाउट हैं, तो वो डाउट्स लाइक टेलीग्राम चैनल में बना देता हूँ. आप उसमें भी रखोगे तो आप भी जैसे ज्वाइन करने जा रहे हो क्राफ्टशाला, आपके साथ में कोई दूसरा बंदा है वो भी ज्वाइन करने जा रहा है, तो यू बोथ कैन इंटरैक्ट विद ईच वन लाइक एवरी वन. तो मैं बोलूँगा कि एक बार ज्वाइन कर लो चैनल इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. तो वहाँ पर आपके लाइक आपके ही जैसे सारे लोग मिल जाएंगे, हमारे जैसे ही बेसिकली. तो कोई अगर आप जॉब भी कर रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग, यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट चैनल. सो थैंक यू. बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइस.